So hello student, this is going to be our lecture 3 of vectors. In this lecture we are going to discuss the question based on section formula. हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको लास्ट लेक्चर में. Then we will see linearly independent vectors or dependent vectors. Then we will see vector equation of line. So this is your important topic. क्यों? क्योंकि इसमें हर साल क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि इक्वेशन ऑफ लाइन पे फ्रॉम 3D और वेक्टर. Then we will see classification of line. We will see which type of line we have. Okay, then we will solve on each type of line question. कि हमारे जो लाइन के टाइप है उन सब पे एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है, उसी में से मोर और लेस क्वेश्चन आता है हमारे लाइंस के. ओके, सो लास्ट टाइम आई हैव गिवन यू दिस क्वेश्चन वेयर ए वाज दिस, बी वाज दिस एंड सी वाज दिस. कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, तो आप क्या कर लोगे, एबीसी कोऑर्डिनेट लिख लो. This is your A is 0, 1, 2. This is your B was given 3, 1, 2, 1, 2, and C is given 0, 5, 2. Now in the question आपसे क्या पूछा है कि what are the lengths. ठीक है, लेंथ दो तरीके से कर सकते हो. You can find AC vector, AB vector and BC vector and you can take modulus, or you can directly find these lengths by using formula, distance formula. तो distance formula करोगे तो AC is equal to under root of कितना हो जाएगा बेटा, 0 minus 0 square, तो 0 square plus 5 minus 1 square, that is 4 square, plus 2 minus 2 square, that is 0 square. So this will give you 4. Next is AB. AB will be under root of 3 square plus 0 square plus 0 square. So AB is 3. And final BC. So BC will be what? Under root of 3 square plus 1 minus 5. That is 4 square. And then 2 square, मतलब 0 square. So this is 5. So now what? You got AC 4. Okay. AB 3. Okay. And BC 5. Okay, now this triangle is 3, 4, 5 triangle. We already know that this triangle is right angle triangle and this angle is 90 degree. Now what? The question has asked that find the length of median from the vertex B. You can simply find it by this. हमसे लेंथ पूछिए तो वर्टेक्स बी से आप लेंथ क्या कर सकते हो, मीडियन की लेंथ पूछिए. मैं वापस से ड्रॉ करूंगा सेकंड क्वेश्चन के लिए डायग्राम को. This is your vertex B, this is your A and this is your C. What you have done? You have simply drawn a median from B. Let's say D. अब D क्या हो जाएगा? That is midpoint of AC. So you can take midpoint of AC and you can find from the which formula? Distance formula. But I am not going to do that because we have studied vector. So we will use the vector 3, 1, 2. Then this is your BD, this is your BC and this is your BA. A क्या है हमारे पास? A है हमारे पास 0, 1, 2 I guess. Yes, A was 0, 1, 2. 1, 2. And C was your 0, 5, 2. Now, what was the section formula? According to section formula, this is 1:1. So according to section formula, BD vector is equal to, that is BA vector, this vector multiply by this. So 1 times BA vector plus 1 times BC vector divides by 1 plus 1, that is 2. So BA vector plus BC vector divides by 2. Straightforward BD vector आ गया. Okay, as soon as we are getting ratio of D, that D किस ratio में divide कर रहा है A और C को, you can easily find these vectors. We can easily find BD vector. Okay, section formula में क्या पढ़ा था? That all 3 vectors should have same direction. हमने origin के रेस्पेक्ट में भी पढ़ा था और हमने किसी दूसरे वेक्टर के दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी पढ़ा था. So BD vector, ठीक है. BD वेक्टर कैसे निकालोगे, तो आपको पहले BA वेक्टर निकालना पड़ेगा. BA वेक्टर मींस A minus B. So 0 minus 3, comma 1 minus 1. Okay, and
2 minus 2 plus, this was your BA vector. BC vector. BC vector is 3 minus 0, 0 minus 3, 0 minus 3, comma. Then you will write 5 minus 1, comma, 2 minus 2. Okay, so again 0 minus 3 BA vector, okay, A minus B divides by 2. That will give you what? This is minus 3, 0, 0 plus minus 3, 4, 0 divides by 2. Add those, so you will get minus 3, minus 3, minus 6, minus 6, 4, 0 divides by 2. You got minus 3, comma 2 is 0. Got it? So this is your BD vector. That means you got median vector you got. Now, BD vector you have gotten. You want length of median. So what will be the length of median? Length of median will be simply magnitude of BD vector. So magnitude क्या हो जाएगा? Magnitude हो जाएगा under root of minus 3 square plus 2 square plus 0 square. That will give you under root 13. Okay, this is length of median. Same way we are going to solve length of, okay, second question देखो पहले हमारा क्या था? Second question was length of median and third question was what? Third question was find the length of internal angle bisector from vertex A. Okay, internal angle bisector from vertex A. Here A is 0, 1, 2, B was 3, 1, 2 and C was 0, 5, 2. This was your C. A was 0, 1, 2, 3, 1, 2 or C was 0, 5, 2. AC was 4, AB was 3. Okay. So AC was 4 and AB was 3. This was your 5 and this was your right angle. Now, what it is says that you have to put one angle bisector from A. Okay, one angle bisector from A. ठीक है, दो तरीके हैं याद रखने के. Now, अगर A से एंगल बाइसेक्टर ले रहे हो तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री and this is also 45 डिग्री. Yes or no? Now, 45 डिग्री का मैं यूज क्या करूंगा? कोई यूज नहीं है, आपको बस ये याद रखना है that angle bisector from any vertex divides the opposite side in the ratio of other sides. For example, अगर ये 4 है तो ये 4 होगा और ये 3 होगा. Again, length 3 नहीं होगी, length 4 नहीं होगी. This will be divided in 3:4. Okay, this will be divided in 3:4. For example, अगर मैं इसको क्या बोल दूं? D बोल दूं. So that means what I will say that BD ratio DC is equal to 3:4. Okay, so now if I have to find AD vector will be, this is 4, right? And this is 3, ratio wise. So this will be 4 times AB vector plus 3 times AC vector divides by 3 plus 4. Okay, so 4 times AB vector, 3 times AC vector divides by 4. That will give you AD vector. AD is what? AD is angle bisector. AD vector is what? That is vector in direction of angle bisector. Now what? 4 times AB. So now you can find AB. AB कैसे find करेंगे? वही जैसे हमने find किया था, तो B minus A, 3 minus 0. So 3, 0, 0 plus 3 times AC. 3 times AC vector, तो C minus A, तो first is 0 and 5 minus 1, that will give you 4 and 2, ये भी 0, divides by 7. Now this will be 4 multiplied by 3, that will give you 12. 12, 0, 0 plus 0, 12, 0. So this is what? This is 12, 12, 0 divides by 7. Now what you have to find? You have to find mod of AD vector. Mod of AD vector is nothing. 1 by 7 is outside.
अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 0. So that will give you 12 root 2 by 7. So length of angle bisector is 12 root 2 by 7. Now question is this कि सर क्या हम इसको ऐसे नॉर्मली भी फाइंड कर सकते थे? बिल्कुल नॉर्मली फाइंड कर सकते थे. आप क्या करते कि हमारे पास यहां पे जो d लिखा हुआ है, which d, ये जो हमारे पास d लिखा हुआ है, इसके you could have find coordinates. कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते बेटा? किसकी हेल्प से? सो वी हैव सेक्शन फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट्स. डी के कोऑर्डिनेट मिल जाते कैसे? 4 times 3. मैं केवल एक्स कोऑर्डिनेट निकाल के बता रहा हूं. 4 multiply by 3 प्लस 3 times 0 डिवाइड्स बाय 7. ऐसे ही y और z कोऑर्डिनेट निकल जाते. और as soon as you have found the coordinate of d, you could have easily calculated AD using distance formula. Got it? Okay. Let's move on to the next question. Next question क्या था बच्चा हमारे पास? Next question था find centroid in center and circumcenter and orthocenter. Okay, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया तो ऐसा करते हैं, सबसे पहला काम हम ये करते हैं. चौथा. ओके, सबसे पहला ही काम हम ये करेंगे कि पोजीशन वेक्टर लिखते हैं. ए को अब मैं एज अ पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं, दैट इज 0 1 2. ठीक है. सी था हमारे पास 0 5 2 एंड डी था हमारे पास, डी क्या, बी था हमारे पास 3 1 2. नाउ दीज आर नॉट कोऑर्डिनेट्स, दीज आर पोजीशन वेक्टर. ओके. सो नाउ अगेन सबसे पहले हम इन सेंटर ही फाइंड करते हैं. पहला इन सेंटर. इन सेंटर कैसे फाइंड करोगे? ये लेंथ थी हमारी एसी थी कितनी? 4. This was what? 3 and this was what? 5. ये लेंथ थी. तो इन सेंटर, इन सेंटर क्या हो जाएगा बच्चा हमारे पास? इन सेंटर वॉज वॉट? इन सेंटर वॉज a टाइम्स वेक्टर a टाइम्स अल्फा, वेक्टर b टाइम्स बीटा, वेक्टर c टाइम्स गामा divides by alpha plus beta plus gamma. This was your in center, where alpha, beta, gamma are opposite sides of position vector A, position vector B, position vector C respectively. Now position vector A क्या है हमारे पास? That is 0 1 2 और multiply by what? 5. 5 multiply by 0 1 2 plus बीटा कितना अपने पास बेटा? 4. तो 4 multiply by 3 1 2 plus next is 3. So 3 multiply by 0 5 2 divides by 5 plus 4 plus 3. Okay. So now what? Calculation करोगे तो 5 4 12 comma then 5 plus 4 that will give you 9 plus 15. So 5 plus 4 कितना होगा? 9. 9 plus 15 that will give you 24. Comma. Then 5 multiply by 2 10. 4 multiply by 2. अच्छा 2 2 2 ही है क्या? So 2 2 2 4 और 5 9 plus 3. Okay, ये भी 24 आ गया. Divides by 5 4 9 12. Divide by 12 you will get 1 2 2. This is what? This is your in center. Now second, centroid. Centroid will be what? Centroid will be vector A plus vector B plus vector C divides by 3. Vector A was 0 1 2 plus 3 1 2 plus 0 5 2 divides by 3. I will divide it directly. So 0 plus 3 plus 0, that is 3. So 1. 1 plus 1 plus 5, that is 7 by 3. Third, सेंट्रोइड के बाद क्या बोला उन्होंने? ऑर्थो सेंटर बोला है. ऑर्थो सेंटर. नाउ ऑर्थो सेंटर का वैसे तो फॉर्मूला था हमारे पास किसके टर्म में? tan के टर्म में था. बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग tan के टर्म में फॉर्मूला, वी ऑलरेडी नो कि ऑर्थो सेंटर कहां पे होता है? जब 90 डिग्री बनता है
दैट इज ऑर्थो सेंटर. सो ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्थो सेंटर को H वेक्टर से डिनोट करते हैं, वेक्टर ए ही हमारा क्या है ऑर्थो सेंटर. दैट विल गिव यू बाय व्हाट 0 1 2, ये ऑर्थो सेंटर हो गया. फिर फोर्थ सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर कैसे फाइंड करोगे? If you have centroid, if you have circumcenter, sorry, if you have centroid, if you have orthocenter, and you have to find circumcenter. So we have clear cut one line, that is OGH. OGH. G is centroid, O is your circumcenter, and H is orthocenter. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बेटा, ये ऑर्थो है, ये सेंट्रॉइड है, ये आपका क्या है, दिस इज सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर C.C. सो दिस इज 1:2. ओके, यू कैन इजीली फाइंड सर्कम सेंटर. कैसे फाइंड करेंगे? सो वेट, हाँ क्या फाइंड कर रहे थे बेटा अपन? सर्कम सेंटर. सो दिस विल बी व्हाट, वापस बना रहा हूं मैं लाइन. ओ यही है सर्कम सेंटर. दिस वॉज योर G, दिस वॉज योर सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड क्या था हमारे पास? अभी अभी निकाला था बेटा अपन ने सेंट्रॉइड. क्या निकाला था सेंट्रॉइड? दिस वॉज 1/7/3 2. 1/7/3 2. देन ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर O. दिस वॉज 0 1 and 2. What we know about this? This is ratio 1:2. So we know that orthocenter, centroid divides orthocenter and circumcenter. अच्छा, सबको दोनों को O से लिख दिया क्या मैंने? So we will write it as H. Orthocenter is written by H. We have to find O. दो तरीके से कर सकते हो. You can either use external division or you can use internal division. I am using internal division. That G is equal to, G vector is equal to 3 times, not 3 times, 2 times वेक्टर O. प्लीज ये नल वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना. दैट इज वेक्टर O. हटा के इसको मैं सर्कम सेंटर का वेक्टर लिख देता हूं. दैट C.C वेक्टर प्लस ऑर्थो सेंटर का वेक्टर लो. ऑर्थो सेंटर वेक्टर डिवाइड्स बाय व्हाट 3. सो वेक्टर G कितना है अपने पास? 1, 7/3, 2, एंड दिस विल बी 2 टाइम्स. सो आई डोंट नो, 2 टाइम्स X, Y, Z प्लस हमारे पास था ये 0 1 2 डिवाइड्स बाय 3. सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3. सो ट्वाइस ऑफ X, Y, Z इज इक्वल टू 3 टाइम्स. सो 3 फिर 7 6 माइनस 0 1 और 2. सो दैट विल गिव यू 3 6 4 डिवाइड बाय 2 कर लो. सो X, Y, Z that will be equal to what? This will be 3/2 and 3 and 2. So this will be what? This will be your circumcenter. Circumcenter will be 3/2, 3, 2. Okay. Circumcenter का एक और तरीका था निकालने का. ये तो हमने निकाल ही लिया. अब क्योंकि हम ऑलरेडी नो, क्या जानते हैं? दैट वी ऑलरेडी नो दिस इज व्हाट? राइट एंगल ट्राइंगल. सर्कमसेंटर विल बी मिड पॉइंट ऑफ दिस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस. अब थे क्या कोऑर्डिनेट हमारे पास? ये थे 0 1 2, एक था हमारे पास 5 1 2, एक था हमारे पास 0, एक मिनट, 5 1 2 थोड़ी था, 3 1 2 था. One coordinate was 3 1 2 and another was 0 5 2. And if you are finding midpoint of this, so that will give you 3 plus 0/2, 3/2, comma 1 plus 5, 6/2, so 3, comma 2 plus 2/2, 2. So 3/2, 3, 2. So that means what we are studying in section formula, that is also correct. वहां से भी हमारा क्या है? 3/2, 3 and 2. Okay, so let's move on to the next topic, that is linearly dependent and linearly independent vectors. Why these are important?
देखो बेटा, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट आर इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू अज्यूम सम वेक्टर्स, ठीक है, समटाइम्स यू हैव टू अज्यूम सम वेक्टर्स एंड इफ यू आर अज्यूमिंग टू वेक्टर्स, दोज टू वेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अज्यूम करने दो वेक्टर क्या होते हैं लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो समझने से पहले ये तो पता करें कि यहां पे लीनियर टर्मिनोलॉजी का मतलब है क्या, ठीक है। लेट्स से देयर आर थ्री वेक्टर्स, लेट्स से देयर आर थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तीन वेक्टर है और आई एम राइटिंग वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स टाइम्स वेक्टर बी प्लस वाई टाइम्स वेक्टर सी। So what I can say that vector A is linear combination of vector B and vector C, where x and y both are scalar, ठीक है, where both x and y are scalar। Similarly, अगर मेरे को तीन वेक्टर्स में लिखना हो, that vector A is linear combination of vector B, vector C and vector D, ठीक है। सो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये क्या हो गया कि किसी भी एक वेक्टर को बचे हुए वेक्टर्स के क्या होगा, कोई भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन में लिखना, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपके पास तीन वेक्टर है, एक वेक्टर है आई कैप, एक वेक्टर है जे कैप और एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। अगर मैं इसको वेक्टर ए बोल दूं, इसको वेक्टर बी बोल दूं और इसको वेक्टर सी बोल दूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स वेक्टर ए प्लस 4 टाइम्स वेक्टर बी। So now you can say that vector C is the linear combination of vector A and vector B। आप इसी को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करके B को इस साइड ले आओ। So this will be what? Vector A is equal to C vector minus 4 times B vector divides by 3। So अगर आपने किसी भी एक वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, ऑटोमेटिकली बचे हुए भी क्या हो जाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में, ओके। सो इसका लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर से क्या मतलब है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने पास डेफिनेशन है, इफ we have n vectors, let's say वो n vectors क्या है, n vectors let's say x1 x2 डॉट 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 xn वेक्टर है, ठीक है। then all vectors are said to be linearly dependent या linearly independent, क्योंकि हम linearly independent पढ़ेंगे, linearly independent if none of them, again वर्ड याद रखना क्या है, that is none of them, यहां अंडरलाइन कर रहा हूं, can be written as linear combination of remaining vectors, this is your statement 1 कि अगर आपके पास n वेक्टर्स हैं, दैट मींस किसी भी एक वेक्टर को आप बचे हुए वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने एक वेक्टर को भी लिख दिया फिर वही है, आप लेफ्ट साइड में ले आओ, डिवाइड कर दो, तो आप किसी भी वेक्टर को क्या कर सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन कई जगह ऐसे लिखा होता है कि इफ लेट्स से x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये क्या है, आर, ये वेक्टर्स हैं, आर एन, सामने से ही बोल दिया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, एंड साथ के साथ क्या कह रखा है आपको, दैट कुछ स्केलर से हमारे k1 x1 वेक्टर प्लस k2 x2 वेक्टर डॉट 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 kn xn वेक्टर इक्वल टू 0 दे रखा है। अब देखो यहां पे अगर ये बात ट्रू है
तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या? इन फर्स्ट स्टेटमेंट आई हैव सेड दैट इफ x1 से लेके x1 दीज आर इंडिपेंडेंट वेक्टर देन वी कैन नॉट राइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दोज। बट व्हाट इज दिस last line clearly states that this is the linear combination of all n vectors। x1 को इधर रखूंगा मैं, बाकी सबको उधर पहुंचा दूंगा, तो लीनियर में लिख दिया आप ये, ठीक है। बट एक और चीज कि ये दो कंडीशन में ट्रू हो सकती है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? देन k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3 इज इक्वल टू kn इक्वल टू, अगर 0 हो गया तब भी तो ट्रू है ये, ठीक है। Okay, so if those two conditions are given, those two conditions are which? That x1, x2, x3 and xn are n linearly independent vector और उनका linear combination दे रखा है। So linear combination is only possible when the coefficients are 0, ठीक है। What is the use of this terminology? So let's see, एक और थर्ड पॉइंट है हमारे पास। थर्ड पॉइंट इज दिस, थर्ड पॉइंट इज दिस, लेट्स से हमारे पास है k1 x1 वेक्टर प्लस k2 x2 वेक्टर डॉट 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 kn xn वेक्टर इज इक्वल टू s1 x1 वेक्टर प्लस s2 x2 वेक्टर डॉट 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 s3 क्या? दैट इज sn xn वेक्टर, ओके। एंड इट इज ऑलरेडी गिवन दैट x1 x2 dot 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 xn vector are linearly independent vectors. This is given, okay. Then what you will do? Take every single vector left hand side. So what you will get? You will get k1 minus s1 x1 vector plus k2 minus s2 x2 vector dot 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 kn minus sn xn वेक्टर इज इक्वल टू 0, नल वेक्टर। देन व्हाट? अब आपको क्या कह रखा है? दैट दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन एंड ऑल्सो x1 x2 एंड xn वेक्टर, ऑल दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। दैट मींस कोएफिशिएंट्स मस्ट बी 0। सो k1 minus s1 दिस शुड बी इक्वल टू 0, दैट विल गिव यू k1 इज इक्वल टू s1, देन k2 minus s2 इक्वल टू 0, दैट विल गिव यू k2 इज इक्वल टू s2, एंड फाइनली ऐसे के ऐसे सिमिलरली kn minus sn equal to 0. So that will give you kn is equal to sn. So what does that mean? This means if you have more than 2 independent vectors or 3 independent vectors from the both side of equality, you can directly compare the coefficient. We could have directly compared the coefficient, both side equality, that k1 is directly equal to the s1 y because x1, x2, x3 dot x1 xn तक ये सब क्या थे? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। बोथ साइड्स वी हैव लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, सो वी कैन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ रेस्पेक्टिव वेक्टर्स, ओके। चलो, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। व्हाई इट इज यूजफुल? एक और चीज बात कर लेते हैं हम कि क्या अगर मैं ऐसे लिख दूं कि दिस इज वेक्टर ए, दिस इज योर डायरेक्शन एंड दिस इज योर वेक्टर बी, डायरेक्शन कोई सी ले लो, ये ले लो, तो व्हाट आई कैन राइट? क्या लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वेक्टर ए इज नथिंग बट लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, या फिर यू कैन राइट वेक्टर बी इज नथिंग लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए। व्हाई? बिकॉज दीज आर पैरेलल वेक्टर्स, ओके। सो इफ आई न्यू द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, आई कैन इजीली कैलकुलेट द अनदर वेक्टर, राइट? दीज आर डिपेंडेंट वेक्टर। क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं? क्योंकि क्या होता है कि हमें जब ट्राइंगल, कई बार क्वेश्चंस दिए होते हैं ट्राइंगल के, हमें ट्राइंगल में वर्टिसेस अज्यूम करनी पड़ती है। तो आप किसी को अगर वेक्टर ए किसी को वेक्टर बी अज्यूम कर लेते हो तो तीसरी वर्टिसेस आप तभी अज्यूम कर पाओगे जब वो इंडिपेंडेंट होगी, ओके। सो यू हैव टू अज्यूम सी वेक्टर। नाउ मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट कब होते? जब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाता। तो इसको मैं एक बार एबीसी के फॉर्मेट में लिख देता हूं। So let's say this is your triangle, this is your A, this is your B, this is your C. I already know that AB vector is not parallel to BC vector.
AB vector is not parallel to BC vector. If AB and BC vector are not parallel, that means they are linearly independent. दो वेक्टर्स में तो ऐसे ही लिखोगे आप, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है तो वेक्टर A is equal to lambda times वेक्टर B. अगर ऐसे नहीं लिख पा रहे हो तो these are not parallel और these are not parallel. That means you cannot write AB vector as lambda times BC vector. तो यहां से आप सीधे सीधे क्या कह सकते हो कि हाँ, ट्राइंगल की अगर आप कोई भी दो साइड्स के वेक्टर लेते हो, दोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है, ट्राइंगल की एनी टू साइड्स इफ यू आर टेकन, दोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. सेम केस में आप क्या कह सकते हो कि फर्स्ट टू साइड वेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. सिमिलरली अगर मैं टू साइड्स के वेक्टर्स की बात कर रहा हूं तो इसी को मैं दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकता हूं, दैट थ्री पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ओके, ये बेटा थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है ये हमारा. दिस इज कॉन्सेप्ट. व्हाई? बिकॉज इन नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल शो यू व्हाई लिनियरली दिस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर वाज यूजफुल. इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एडवांस में कुछ ज्यादा ही आते हैं. कैसे आंसर करेंगे? सो कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए. ठीक, व्हाट इज द क्वेश्चन? इन अ ट्राइंगल ABC, D divides BC in 3:2. So D divides BC 3:2. E divides CA. So E divides CA. So you have to see it like this. CA कितने रेशो में बेटा? 1:3. The lines AD and BE meet at H. So ये H हो गया. ये दोनों H पे मीट कर रही हैं. And CH meets, यानी if you extend the line from CH, it will meet at F in AB. Okay. Find the ratio in which F divides AB. So now we can do it by two methods. One method is Shiva theorem. Okay. That is the name of scientist. Shiva's theorem. According to Shiva, what they said? They said that the ratio AE divides by EC, AE divides by EC, multiply by DC divides by BD, DC divides by BD, multiply by FB divides by FA. Okay, FB divides by FA. I am talking about only ratios. This should be equal to 1. This should be equal to 1. So what it will be? So AE divides by EC. It is given 3:1. Multiply by DC divides by BD. That is given 2/3. Multiply by FB divides by FA is equal to 1. So cross multiply कर दो. So 3 से 3 cancel. So this will be 2. So FA divides by FB. FA divides by FB. This will be 2 divides by 1. So सीधे सीधे F divides कर रहा है AB को 2:1 में आ गया हमारे पास एक ही लाइन में. But again, Shiva's theorem किसके लिए applicable है? Shiva's theorem is applicable for 3 consecutive lines. 3 consecutive lines मतलब consecutive नहीं, 3 concurrent lines from the opposite vertex. और वो कहाँ मीट करनी चाहिए? साइड्स को मीट करनी चाहिए. ओके, सो ये F हमारे पास इस लाइन को बाहर भी मीट कर सकता था गिवन दैट H आउटसाइड द ट्राइंगल होता. ओके, सो शिवास थ्योरम की हमारे पास यहां पे बस एक वो हो गई लिमिटेशन कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर 3 कॉन्करेंट लाइंस. और वो कॉन्करेंट लाइन भी कहां से होनी चाहिए? अपोजिट वर्टिसेस से. ओके, और वो कहीं भी मीट कर सकती थी. हो सकता था D यहां मीट करता, E यहां मीट करता, उसके हिसाब से F अपने आप एडजस्ट हो जाता. बट गिवन दैट कि वो सारी की सारी लाइन कहां से पास करनी चाहिए? H से पास करनी चाहिए. ओके, सो नाउ व्हाट? अब शिवास थ्योरम हर जगह तो यूज कर नहीं सकते, फिर क्या करें? सो लेट्स डू इट बाय जनरल वे, जिससे हम सारे क्वेश्चन कर सकें. ठीक है, आपसे ये ना पूछ के आपसे केवल इतना सा पूछ लेता कि मुझे तो बस ये बता दो कि H AD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. फिर क्या करते भाई? F तो हमारा एक क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंडेड क्वेश्चन हो गया.
ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सा एक्सटेंडेड क्वेश्चन हो गया। ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या आता हम थे, अगर थोड़ा छोटा क्वेश्चन पूछना होता, लेट्स से मेंस के हिसाब से बोल रहे, तो अकॉर्डिंग टू मेंस दे विल आस्क ओनली इन व्हाट रेशियो H डिवाइड्स AD, ठीक है, इन व्हाट रेशियो H डिवाइड्स AD, ये क्वेश्चन आ गया। ओके, उन्होंने एक्सटेंशन में पूछ लिया इन व्हाट रेशियो F डिवाइड्स AB, तो वो लास्ट में देखेंगे, हम पहले H की बात कर लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी नोन व्हाट, दैट दिस इज 3:1, दिस इज 3:2। सो नाउ व्हाट यू विल डू, you will assume 3 position vectors, or I can say you will assume 2 side vectors, ठीक है। now you are assuming like this that whatever you are assuming those should be linearly independent। यहां पे एक बच्चे क्वेश्चन आता है कि सर हाँ ठीक है, 3 पोजीशन वेक्टर आपने अज्यूम कर लिए, दैट से इसको कुछ मान लेंगे, इसको कुछ मान लेंगे पोजीशन वेक्टर में, और इसको भी कुछ मान लेंगे। अभी एक बार बात कर लेते हैं, सर 2 ही साइड वेक्टर अज्यूम को कर सकते हैं, 3 साइड वेक्टर क्यों नहीं अज्यूम कर सकते हम ट्रायंगल में? एज सून एज यू आर अज्यूमिंग 3 साइड वेक्टर्स दीज विल बिकम डिपेंडेंट। व्हाई? बिकॉज इन अ ट्रायंगल AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू 0। सो 3 वेक्टर्स अज्यूम करते ही, 3 साइड वेक्टर्स अज्यूम करते ही आप उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। ओके, बट एज सून एज यू आर अज्यूमिंग ओनली 2 साइड वेक्टर्स, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए फॉर अ ट्रायंगल आप नहीं लिख सकते अनटिल अनलेस साइड्स आर पैरेलल, और जैसी साइड्स पैरेलल हुई वो ट्रायंगल बनेगा नहीं। ओके, और 2 वेक्टर अज्यूम कर रहे हो, 2 वेक्टर्स आएंगे कितने पोजीशन वेक्टर से? 3 पोजीशन वेक्टर से इन अ ट्रायंगल। सो दैट मींस मैं ये जो वर्टिसेस लिखी हुई है इनको अज्यूम करूंगा मेरे हिसाब से। अब यहां पे क्या आता है, यहां पे कोई बच्चा कह दे कि बोले सर ठीक है वर्टिसेस, क्या मैं वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C अज्यूम कर सकता हूं? बिल्कुल अज्यूम कर सकते हो, और हमें पता है बिकॉज AB वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू BC वेक्टर्स, तो हमारे पास जो वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, these vertices will be linearly independent. Okay, but somehow we have to save the time, ठीक है, we have to save the time in the advance or mains. So what we will do, हमारा ट्राइंगल तो यही रहेगा, ठीक है। अब because we are studying free vectors, तो हम इसी ट्राइंगल को उठा के क्या ओरिजिन पे ले जा सकते हैं? किसी भी एक वर्टिसेस को ओरिजिन में पुट कर देना विदाउट चेंजिंग दी साइन। सो लेट्स से मैंने C को किस पे पुट कर दिया? ओरिजिन पे पुट कर दिया। अच्छा, मैंने ये वेक्टर भी ऐसे मान लिया, ठीक है। हाँ, अभी के लिए मैंने क्या माने थे ये, ठीक है, दिस वाज योर वेक्टर C एंड दिस वाज योर वेक्टर B। ये पोजीशन वेक्टर मैंने ABC मान रखे थे। मैंने विदाउट चेंजिंग द ज्योमेट्री, विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ ट्राइंगल, आई हैव पुट दैट C एट ओरिजिन। तो C को मैंने क्या मान लिया? नल वेक्टर। व्हाई? ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। और मैंने B को क्या मान लिया? वेक्टर B ही रह गया, और वेक्टर A ही है, ठीक है। दीज आर न्यू पोजिशन वेक्टर। सो नाउ अगेन whenever you are assuming 3 position vectors, all 3 position vectors should be independent of each other, first point. Second, you can assume any position vector as null vector. Why? Because according to that null vector, आपकी जो without changing the shape, you can take one vertex on null vector, because we are studying free vectors in mathematics. Okay, that's why you can assume anyone is null vector, ठीक है। So अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इवन दो हमने पहले ही वो दिया हुआ है डायग्राम, ठीक है, इसी डायग्राम में सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। सी को हमने क्या अज्यूम कर लिया था बेटा? नल वेक्टर अज्यूम कर लिया था। सो लेट्स से सी वाज नल वेक्टर। आप इन 3 वेक्टर से ज्यादा वेक्टर्स अज्यूम नहीं कर सकते। अब सी नल वेक्टर था तो इसको भी नल वेक्टर कर दो, 3 वेक्टर ज्यादा अज्यूम नहीं कर सकते। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड एनी अदर वेक्टर, यू विल फाइंड ऑल द वेक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, या फिर ई का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? किससे बता सकते हो आप? सेक्शन फॉर्मूला से। सो 3 टाइम्स नल वेक्टर, 3 टाइम्स नल वेक्टर प्लस वेक्टर ए डिवाइड्स बाय 3 + 1 4। सो साथ के साथ लिखते जाएंगे हम कि वेक्टर ई, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बाय 4। सिमिलरली यहां पे डी लिखा हुआ है, डी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? सो 3 टाइम्स नल वेक्टर 2 टाइम्स वेक्टर बी डिवाइड्स बाय 5। गॉट इट? ओके। नाउ मैंने अभी आपको स्टार्टिंग कहा था कि दैट क्वेश्चन इन द मेंस विल आस्क यू व्हाट इन व्हाट रेशियो एच डिवाइड्स एडी और बीई।
क्योंकि सी एफ का तो अभी नाम नहीं ले सकते बिकॉज वी डोंट नो अबाउट दी एफ. सो नाउ व्हाट यू विल डू, वापस से डायग्राम बनाओ कि भैया ये था हमारे पास ए है वेक्टर ए, ये हमारे पास डी, और डी को करंटली अभी तो लिख देते हैं वेक्टर डी. ठीक है, बिकॉज वेक्टर डी आई हैव ऑलरेडी फाउंड द वेक्टर डी इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी. प्योरली बी में आ रहा है बट ए और बी के टर्म में बोल रहा हूं मैं. एंड वन वेक्टर वी विल अज्यूम व्हाट, बी ई वेक्टर. सी एफ इसलिए अज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज एफ इज अननोन राइट नाउ. सो दिस इज योर बी, दिस इज योर एच, एच को बोल देते हैं हम स्मॉल एच वेक्टर. बी वेक्टर हमारा बी वेक्टर है ही, और जो ई था उसको भी वापस से ई वेक्टर बोल देते हैं. सो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल अज्यूम रेशियो. ठीक है, आपको जब रेशियोज निकालने थे तो आप 10th क्लास में भी ऐसा ही करते थे कि वी विल अज्यूम एच इज डिवाइडिंग बीई इन लैम्डा रेशियो 1. ठीक है, सिमिलरली एडी इज डिवाइडेड बाय एच इन 1 रेशियो म्यू, सो म्यू रेशियो 1. ये अज्यूम कर लेंगे. नाउ व्हाट यू विल डू, you will find h with the help of AD. First, h with the help of AD. Which formula? Section formula. So vector h is equal to mu times vector A plus 1 times vector D divides by mu plus 1. ठीक है, लिख लो आप एक बार कि वेक्टर A तो वेक्टर A ही है. So mu divides by mu plus 1 वेक्टर A, एंड वेक्टर D की वैल्यू क्या थी बेटा, vector D was 2 by 5 vector B. So 2 by 5 mu plus 1 vector B. Now you can see that we got vector H in terms of A and B. Now again, second, you will do that thing again. Why? You can find H with the help of what? With the help of BE. Similar process. BE. So this will be vector H is equal to 1 times vector E plus lambda times vector B divides by lambda plus 1. What is the value of vector E? We have already found it out, that vector A by 4. So this will be vector A by 4 times lambda plus 1 plus lambda upon lambda plus 1 vector B. Got it? So this is your vector H. Now again, H जो point है वो दोनों लाइंस पे लाई करता है, एंड H इज द सेम पॉइंट. सो नाउ फ्रॉम वट एवर यू आर गॉट द कोऑर्डिनेट फ्रॉम द H वेक्टर फ्रॉम द 1 and 2 both are same. So position vector of H from 1 and 2 are same. So what you will write? You will write that mu divides by mu plus 1 vector A plus 2 by 5 mu plus 1 vector B is equal to vector A divides by 4 times lambda plus 1 plus lambda divides by lambda plus 1 vector B. Now हमने तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखा था, तीसरा स्टेटमेंट दैट इफ वी हैव इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी वी कैन डायरेक्टली कंपेयर द कोफिशिएंट. सो यू कैन कंपेयर व्हाट, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर A. क्यों? बिकॉज वेक्टर A एंड वेक्टर B आर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. सो वेक्टर A की कोफिशिएंट क्या है बेटा, दैट इज म्यू डिवाइड्स बाय म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू राइट साइड में 1 upon 4 divides by lambda plus 1, 1 upon 4 lambda plus 1, and same to same coefficient of vector B left side it will be 2 divides by 5 times mu plus 1 and lambda divides by lambda plus 1. What we can do, let's say this is your equation number A and this is your equation B. So now what you can do, divide A by B. What we will get? So this will be 5 times mu, 5 times mu because mu plus 1 से mu plus 1 cancel, divides by 2 is equal to lambda plus 1 cancel, and this will be 1 upon 4 lambda. ठीक है, you will get 1 upon 4 lambda. मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी 4 से 4 कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू 1 by 10 म्यू. ठीक है, एक बार चेक कर लो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज 20 डिवाइड्स बाय 2 10. सो यू गॉट लैम्डा इज इक्वल टू 1 by 10 म्यू.
Now what you can do? You can put this value in any of this equation. So we will put it in A. Lambda is equal to 1 by tan mu in A. What was equation A? Let's see. It was mu upon mu plus 1 is equal to mu upon mu plus 1 is equal to 1 upon 4 times lambda plus 1. 1 upon 4 times lambda value 1 upon tan mu plus 1. Okay, mu upon mu plus 1 is equal to 1 upon 4. यहाँ पे tan mu, this will be 1 plus tan mu. Mu से mu cancel out हो गया. Now again you can cross multiply it. You will get 4 plus 40 mu. 4 plus 40 mu is equal to tan mu plus tan. Okay, what you got? 4 plus 40 mu is equal to tan mu plus tan. Now this will be what? 30 mu is equal to 6. So you got mu is equal to 1 by 5. ठीक है, हमें रेशियो क्या मिल गया? mu is equal to 1 by 5. तो मैं वापस से ड्रॉ कर रहा हूं वही लाइन. क्या लाइन थी हमारे पास? This was your A, this was your D, this was your B, this was your E, this was H. Okay, which coordinate you have assumed lambda ratio mu और mu ratio 1? Okay, so इसको हमने mu ratio 1 माना था. AD को H डिवाइड कर रहा था, DA को H डिवाइड कर रहा था mu ratio 1 में. यहां पे mu माना था हमने. ठीक है, ये mu assume किया था. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 by 5. इसका मतलब रेशियो उल्टा लेके चल रहे थे. So it will be 1 by 5 this ratio. ठीक है. Now simply you can find H again. ठीक है, H कैसे फाइंड करोगे? A की वैल्यू मुझे पता थी कि वेक्टर A है और D की वैल्यू मुझे पता थी कि 2B वेक्टर बाय 5 है. दो तरीके करने के. अब एक बार आपके पास म्यू रेशियो 1 आ चुका है, दैट दिस इज 5 एंड दिस इज 1. मैं 5 को वापस से लिख रहा हूं ढंग से, दैट दिस रेशियो इज 5. ओके, and this ratio is 1. So if this is 1:5, then vector H is equal to 2B by 5 multiplied by 5. 2B vector plus vector A divides by 5 plus 1, that is 6. ठीक है, आप कहां से ला सकते हो ये वैल्यू? You can get the vector H value from this also. ठीक है, यहां पे आपको क्या पुट करना है? mu is equal to 1 by 5. ये पुट करना है आपको. As soon as you are putting mu is equal to 1 by 5, you will get that equation. ठीक है, ये H आ गया. ओके, सो अब ये वाला क्वेश्चन आपके किस में हो जाएगा कि H हमारे किसको, AD को किस में डिवाइड कर रहा था? 5:1 में डिवाइड कर रहा था. ठीक है, एडवांस इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देता है. एडवांस इस क्वेश्चन को क्या एक्सटेंड कर देता है कि अब वो जो F था वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था. तो डायग्राम कुछ ऐसा था, ये रहा A, ये रहा B और यहां का ये F है. F आया कहां से कि हमारे पास कहीं C था और यहां पे कहीं हमारे पास H था. When you are extending CH, it meets AB in F. Then find in which ratio F is divided AB. Now again वही क्वेश्चन जो अभी हमने किया है वही रिपीटेशन पे आ गया. ठीक है, कैसे करेंगे? ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि F इसको T:1 में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, और HFC को S:1 में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, क्या किया मैंने कि हमारा TF जो F है वो AB को T:1 में डिवाइड कर रहा है एंड HFC को किस में डिवाइड कर रहा है? S:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है. F को मैं मान लेता हूं पोजीशन वेक्टर F. जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से यूज करेंगे. ठीक है, कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम है रिपीटेटिव मोड में. ठीक है, एक बार आप लिख लो. H आपने अभी भी निकाला है, H निकाला है आपने वेक्टर A प्लस 2B वेक्टर डिवाइड्स बाय 6. C आपका था नल वेक्टर. A और B वही थे कि A था आपका स्मॉल वेक्टर A और B था आपका स्मॉल वेक्टर B. कैलकुलेशन देखते हैं. तो पहले तो मैं F फाइंड करता हूं किसकी हेल्प से? AB की हेल्प से. तो ये हो जाएगा वेक्टर F
ए बी की हेल्प से हो जाएगा मेरे पास वेक्टर एफ इज इक्वल टू टी टाइम्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डिवाइड्स बाय टी प्लस वन, नो प्रॉब्लम. देन आई विल फाइंड एच विद द हेल्प ऑफ एफ सी. अगेन मैं यहां पे एफ भी फाइंड कर सकता था, बट आई एम अवॉइडिंग एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला. ओके, आई एम अवॉइडिंग एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला. Okay, why? Because I am more comfortable in internal section formula. So vector H will be is equal to 1 times vector F plus S times vector C. S times vector C means null vector divides by S plus 1. So यहां से vector F कितना आ जाएगा मेरे पास? Vector F आ जाएगा S plus 1 H vector. ठीक है, H vector था क्या हमारे पास? ये हो जाएगा A S plus 1 by 6 vector A plus S plus 1 by 3 vector B. Now what you got? You got vector F in terms of what? Vector F को आपने कहां से निकाला था? फर्स्ट वाले इससे. किससे बेटा? किसकी हेल्प से? With the help of AB. With the help of AB you got vector A plus t times vector b divides by t plus 1 and t plus 1. Okay, with the help of this is s plus 1 divides by 6 vector a and plus s plus 1 divides by 3 vector b. Okay, what an interesting question here. Now a and b are independent vector, then we can directly compare the coefficients. इस बार नहीं लिख रहा मैं coefficient compare करना. So 1 upon t plus 1 is equal to s plus 1 by 6 and t upon t plus 1 is equal to s plus 1 by 3. s plus 1 by 3 की वैल्यू है t upon t plus 1, तो यहां पे लिख सकते हो इसी को, इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो. सो दिस इज 1 upon t plus 1 is equal to t upon t plus 1 multiply by 1 by 2. क्यों? क्योंकि we have replace the value of s plus 1 by 3. t plus 1 से t plus 1 cancel. You got t is equal to 2. Bravo, you got the answer. Why? Because जो आपने assume किया था, ध्यान से देखो क्या assume किया था बच्चे. आपने assume किया था that FAB को t ratio 1 में divide करता है. That means you have assumed FA divides by FB is equal to t divides by 1. और t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2. तो 2 डिवाइड्स बाय 1. ये आपके एडवांस का क्वेश्चन हो गया. सो आई हैव डन इट विद द हेल्प ऑफ शिवास थ्योरम एज वेल एज बाय दिस. शिवा थ्योरम मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि अगर आपसे इन बिटवीन पूछता कि मेरे को तो बस इतना सा बता दो कि एच एडी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो शिवास थ्योरम इज नॉट यूजफुल हियर. शिवास थ्योरम इज यूजफुल ओनली व्हेन यू आर गेटिंग पॉइंट्स ऑन द साइड्स. ठीक है, पॉइंट ऑन दी साइड्स. और वो पॉइंट साइड्स पे कैसे आने चाहिए? जब आप अपोजिट वर्टिसेस से ड्रॉ कर रहे हो, और उसमें भी कंडीशन क्या है? दैट दोज ऑल 3 लाइंस शुड बी कॉन्करेंट. ठीक है, चलो अब लाइन की बात करते हैं. वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन. सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन? होती क्या है पहले तो बात. तो फर्स्ट, किसी भी लाइन की इक्वेशन बताने के लिए आइदर इन 2D और 3D यू नीड एटलीस्ट 2 इंफॉर्मेशन. You need at least 2 information. In 2D, you required a point and a slope. ठीक है, आपको जब पॉइंट पता था और स्लोप होती थी, तो वहीं से हमारे पास लाइन की इक्वेशन मिल जाती है. उसी स्लोप को हम 3D में क्या बोल देते हैं? डायरेक्शन. बिकॉज देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप इन 3D, सो वी विल कॉल इट डायरेक्शन. ठीक है, सो अगर आपको केवल 1 पॉइंट पता हो एंड डायरेक्शन ऑफ लाइन पता हो, तो you can find what? You can easily tell the equation of line in vector form. Let's say कि हमारे पास एक लाइन ये रही, ये लाइन है, ये कहां से पास कर रही है? किसी पॉइंट A से पास कर रही है. ठीक है, लेट्स से पॉइंट है x1, y1, z1. ठीक है, इस लाइन पे एक रैंडम पॉइंट है जो कि पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम बोल देते हैं x, y, z. ठीक है, और जो इस लाइन की डायरेक्शन है वो गिवन है आपको वेक्टर बी.
कि लाइन की डायरेक्शन वेक्टर बी। अब लाइन की डायरेक्शन इस साइड में भी ले सकते हो और आप इस साइड में ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज लाइन की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है इन दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। व्हाई? बिकॉज यू कैन काउंट एज लाइन्स एंगल। जब बात करते हो तो वो थीटा भी कर रही होती है और पाई माइनस थीटा भी एंगल होता है। चलो कोई नहीं, ये तो बात की बातें हैं, बहुत पहले की बातें हैं, हमारे 10th क्लास की बातें हैं। बट नाउ व्हाट आर थिंग्स गिवन? फर्स्ट वेक्टर ए क्या है? पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइन इज पासिंग, फ्रॉम वेयर लाइन इज पासिंग। ठीक है। वेक्टर बी क्या है? दैट इज वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ लाइन। इन सम बुक्स इट इज रेफर्ड एज दैट वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, तो इट डजंट मैटर कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, और क्या है। सो नाउ व्हाट आई कैन राइट? आई कैन राइट रिलेशन ए आर वेक्टर। ए आर वेक्टर कैसे लिखोगे बेटा? ए आर वेक्टर लिखोगे आप x2 माइनस x1 से, और वेक्टर बी को मैं अज्यूम कर लेता हूं कि वेक्टर बी कुछ है हमारे पास। ठीक है, वेक्टर बी की वैल्यू आप ऐसे ही अज्यूम कर लो कि वेक्टर बी लिखा हुआ हमारे पास अल्फा बीटा गामा, या फिर एबीसी लिख लो, ए बी सी। ध्यान रखना, दीज आर एबीसी पॉइंट्स, दैट इज वेक्टर बी। सो नाउ व्हाट? ए आर वेक्टर क्या हो जाएगा? ए आर वेक्टर इज नथिंग, दैट ए आर वेक्टर इज एक्स माइनस x1, या फिर आप अगर पोजीशन वेक्टर की बात करो, अगर आप सिर्फ किसकी बात करो? पोजीशन वेक्टर की बात करो, तो वी विल राइट इट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर क्या मान लेते हैं हम? ठीक है, वेक्टर ए का पोजीशन मान लेते हैं हम वेक्टर ए, एंड वेक्टर आर का पोजीशन मान लेते हैं वेक्टर आर। ओके, यहां पे अब क्लियरली लिख देता हूं कि वेक्टर ए इज व्हाट? वेक्टर ए इज नथिंग x1 y1 and z1. Vector r is what? Vector r represents the whole line x comma y comma z, and vector b is what? Vector b is the direction which is a comma b comma c. So now I have to give the equation of the line. How we are going to give this equation? So again we know that AR vector is parallel to vector b. यही बात है क्या कि AR वेक्टर क्या है? पैरेलल टू वेक्टर बी है। ठीक है, और जब भी वेक्टर के पैरेलल होता है, सो व्हाट यू कैन राइट? You can write it like this, that AR vector is lambda times vector b. AR vector is lambda times vector b. AR vector है क्या चीज? AR vector है R vector minus A vector is equal to lambda times B vector. So लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? वेक्टर R is equal to वेक्टर A plus lambda times वेक्टर B. ये किसकी इक्वेशन हो गई? ये हो गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई कह दे कि अ लाइन पासेस थ्रू passes through 1, 2, 3 and is parallel to a vector ले लिया अपन ने 4 i कैप 3 j कैप एंड 6 k कैप, ये वेक्टर ले लिया। तो अब मुझे क्या करना है? लाइन की इक्वेशन बताने के लिए क्या चीज चाहिए बेटा? लाइन की इक्वेशन बताने के लिए मुझे चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन। अभी देखते हैं। लाइन की इक्वेशन बताने के लिए मुझे चाहिए होगी दो इंफॉर्मेशन। ठीक है, दो इंफॉर्मेशन क्या? एक तो किस पॉइंट से पास कर रही है और एक उसकी डायरेक्शन क्या है। पॉइंट 1, 2, 3 आ गया तो सीधे दे वेक्टर आर, इसका पोजीशन वेक्टर लिख दो 1, 2, 3 का। सो 1 i कैप 2 j कैप 3 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन 4 3 6। दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, सो हमें यही चाहिए था। बट व्हाट इफ डायरेक्शन नहीं गिवन हो, 2 पॉइंट्स गिवन हो, 2 पॉइंट्स। मतलब इस बार आपको डायरेक्शन नहीं गिवन, ये रही आपकी लाइन
यहां पे कहीं आपका पास ए है, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, यहां पे कहीं आपको बी नोन है, ए और बी दोनों नोन है, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है, और आर इज द पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स द होल लाइन, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है। तो इसको कैसे करोगे? तो इस केस में आप लिखोगे दैट ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू व्हाट? ए आर वेक्टर। तो अगेन ए आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स व्हाट? ए बी वेक्टर। ए आर वेक्टर क्या हो जाएगा? ए आर वेक्टर आपका हो जाएगा वेक्टर आर माइनस ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, सो आपके पास वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या आ गया? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म इन विच वेक्टर फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म की हमारे पास लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। अब यहां पे कोई क्वेश्चन कह दे कि सर मैं तो ऐसे भी लिखूंगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो ये भी फॉर्म सही है। क्यों? इस पॉइंट से पास करनी चाहिए और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन। अगेन यहां पे कोई वापस कह दे कि नहीं सर मैं तो ये लिखना चाहता हूं वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस टी टाइम्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो अगेन दिस इज ऑल्सो करेक्ट। व्हाई दिस इज ऑल्सो करेक्ट? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि ये हमारी लाइन है, आप इसकी डायरेक्शन वेक्टर बी भी ले सकते हो और माइनस वेक्टर बी भी ले सकते हो, दोनों डायरेक्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि लाइन के लिए डायरेक्शन डिफाइन या तो ये होगी या फिर यही होगी। ठीक है, वन इज वेक्टर बी, अनदर वन इज माइनस वेक्टर बी। ठीक है, सो लाइन की इक्वेशन हो गई। नाउ अब क्योंकि हम 3D में बात कर रहे हैं, 3D में हम क्लासिफिकेशन ऑफ लाइंस देख लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास भाई लाइंस हैं, क्या क्या हो सकती है, 3D में बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पे मेरे जो हैंड्स हैं उनको लाइंस मान के चल रहा हूं, वहां से रिप्रेजेंट करूंगा मैं। ठीक है, क्या केसेस हो सकते हैं भैया? हमारे पास 2 केस होते हैं, या तो लाइन दोनों क्या है प्लेनर, कोप्लेनर, इसका मतलब अभी समझेंगे, या तो लाइन कोप्लेनर है या लाइन नॉन कोप्लेनर है। कोई जरूरत नहीं है अभी इसका मतलब समझने की कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर क्या होता है। ठीक है, मैंने बस ऐसे ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब देखो लाइन क्या है 3D में, या तो इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है। यहां पे लाइन की बात हो रही है, वेक्टर्स की बात नहीं हो रही, तो ये नहीं कि पैरेलल में भी आप बोल दो पैरेलल और एंटी पैरेलल, या फिर लाइन क्या है पैरेलल, पैरेलल ना बोल के इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल, PARALL। पैरेलल में भी 2 टाइप की होती है, प्लीज डोंट से पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल में 2 टाइप की होती है, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। पैरेलल का मतलब क्या है कि 2 लाइन पैरेलल है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कोइंसिडेंट मतलब 2 लाइन बनी हुई है, दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं। ठीक है, एक दूसरे पे ओवरलैप करती है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग मतलब 2 लाइन एक दूसरे को कट करती हैं। नॉन कोप्लेनर के अंदर हमारे पास आ गई फिर लाइन चौथी आ गई SKEW, स्क्यू लाइंस। ठीक है, स्क्यू लाइंस कहने का क्या मतलब है? चलो मैं आपको हैंड से समझाता हूं। ये मेरे पास 2 हैंड्स है, अगर 2 हाथ होंगे, मेरे पास 2 ही तो होंगे। हाँ, तो ये 2 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो नाउ इफ दीज 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इन दिस केस दे विल इंटरसेक्ट, इन दिस केस दे आर पैरेलल, और अगर मैं एक दूसरे पे ओवरलैप करा दूं तो दीज आर कोइंसिडेंट। अब यहीं पे सोचो कि ये मेरे पास पैरेलल थी और मैंने टिल्ट कर दिया। ठीक है, सो दीज लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, तो ये क्या हो गई? इनको बोलते हैं हम स्क्यू लाइंस। ठीक है, पता कैसे करेंगे कौन सी लाइन क्या है क्या नहीं है? तो पैरेलल में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर पहली लाइन का हमारे पास ये वेक्टर ए है डायरेक्शन और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ये बात किसकी हो रही है? केवल डायरेक्शन की। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं इनका। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द फॉलोइंग लाइंस, मतलब नेचर की बात कर रहे हैं, डिटरमाइन द नेचर ऑफ फॉलोइंग लाइन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमें जब भी कैलकुलेट करना होगा तो वी विल ऑलवेज कैलकुलेट, सबसे पहली चीज जो हम नोटिस करेंगे कि लाइंस पैरेलल है या नहीं है।
तो पहली वाली लाइंस क्या दे रखी है हमको? पहली वाली दे रखी है 1 -1 -10। क्वेश्चन 1 जो हमें दे रखा है कि वेक्टर r इज इक्वल टू 1 -1 -10, वेक्टर r इज इक्वल टू, ठीक है, फिर उसके बाद 1 -3 -1, 1 -3 -1, ओके। देन डायरेक्शन दे रखी है 2 -3 8 प्लस लेमडा टाइम्स 2 -3 8, एंड सेकेंड लाइन की डायरेक्शन है हमारे पास दैट इज 1 -4 और 7 प्लस म्यू टाइम्स 1 -4 और 7, so 2 -3 8, 1 -4 7. Let's see. 1 -1 -10, 2 -3 8, 1 -1 -10, 2 -3 8, then 4 -3 -1, 1 -4 7, 1 -4 7, और ये था 4 -3 -1, ठीक है। So now these two lines are given in vector form. मैं वापस से रिपीट करवा दूं कि कौन सी चीज क्या है। ये दे रखा है कि L1 इस पॉइंट से पास कर रही है और ये डायरेक्शन है, L2 इस पॉइंट से पास कर रही है और ये डायरेक्शन है, ठीक है। मुझे क्या पता करना है कि विच आर नेचर ऑफ दिस लाइन, कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना होगा। लाइन पैरेलल है, पैरेलल होगी तो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, कोइंसिडेंट हुई तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, और अगर स्क्यू हुई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये वाले देख लो नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। सो नाउ व्हाट यू कैन डू, सबसे पहला जो हमारा टास्क होगा सॉल्व करने का, वो हम चेक करेंगे कि वेदर लाइंस आर पैरेलल और नॉट। स्टेप 1, चेक लाइंस आर पैरेलल और नॉट, क्योंकि अगर शुरू में दिख गई पैरेलल है तो फिर पैरेलल में मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि कोइंसिडेंट है या नहीं है। कोइंसिडेंट वाला केस भी बताएंगे हम आपको। तो पैरेलल और नॉट, तो पहली लाइन की डायरेक्शन B1, पहली लाइन की डायरेक्शन क्या थी? वो थी 2 -3 8, एंड B2 है हमारे पास 1 -4 7, ठीक है। हमारे पास क्या कंडीशन आती है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो A1/A2, सो 2/1 इज नॉट इक्वल टू -3/-4, सो दैट मीन्स क्लियर कट यू कैन से दैट वेक्टर B1 इज नॉट पैरेलल टू वेक्टर B2, ठीक है। इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, देन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, बट यहां पे ये साफ साफ दिख रहा है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, सो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर पैरेलल नहीं है। तो यहां से एक बात तो खत्म हो गई कि लाइन हमारी क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो अब दो ही केस बचे कि इंटरसेक्टिंग होगी या स्क्यू होगी। कैसे करते हैं देखो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि वेक्टर आर किसको रिप्रेजेंट करता है, x, y, z को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस आपको यही वैल्यू रख देनी है। तो लाइन 1 की बात करते हैं। लाइन 1 थी हमारे पास वेक्टर आर इज इक्वल टू 1 -1 -10 प्लस लेमडा टाइम्स 1 -1 -10 लेमडा टाइम्स 2 -3 8, 2 -3 8, ठीक है। सो वेक्टर आर हो गया x, y, z, और राइट साइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 लैम्डा, x कंपोनेंट x में ऐड होंगे, y कंपोनेंट y में ऐड होंगे, और z कंपोनेंट z में ऐड होंगे, -1 -3 लैम्डा, एंड फाइनल हमारे पास कितना आ गया -10 + 8 लैम्डा। अगेन 1 + 2 लैम्डा, -1 -3 लैम्डा, -10 + 8 लैम्डा। ओके, दिस इज योर L1। L1 के पॉइंट आ गए। सिमिलरली L2 की बात करते हैं। तो L2 में क्या था हमारे पास, वेक्टर R इज इक्वल टू 4 -1 4 -3 -1 1 -4 7, 4 -3 -1 प्लस म्यू टाइम्स 1 -3 1 -3 या 1 -4 और 7, सही है। 1 -4 1 -4 एंड 7, ठीक है। तो यहां से क्या लिखोगे आप, y, x, y, z
इज इक्वल टू अपने पास जाएगा 4 प्लस म्यू, देन -3 माइनस 4 म्यू, देन -1 प्लस 7 म्यू। ये आ गया। नाउ व्हाट? नाउ बिकॉज L1 क्या मान के चलोगे आप? L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग, ये अज्यूम करके चलोगे आप। इंटरसेक्टिंग, सो वी विल अज्यूम L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है, सो x, y, z will be same for both. So what you will write? We will write that x, y, z from L1. L1 से वैल्यू क्या थी बच्चे हमारे पास? L1 से वैल्यू थी हमारे पास that 1 plus 2 lambda, comma -1 minus 3 lambda, comma -10 plus 8 lambda. This was the value from 1. And from L2, what was the value? 4 plus mu, -3 minus 4 mu, -1 plus 7 mu. ठीक है? And if these two values are equal, that means how many equations you will get? You will get 1 plus 2 lambda is equal to 4 plus mu. Again, -1 minus 3 lambda is equal to -3 minus 4 mu, and -1 plus -10 plus 8 lambda is equal to -1 plus 7 mu. So you got 3 equation and 2 variables. ठीक है? We will solve lambda and mu with these two. So first equation will be what? 2 lambda minus mu is equal to 3. Second equation will be -3 lambda minus 4 mu plus 4 mu is equal to -2. ठीक है? सो एक बार वापस चेक कर लो बेटा। -1 -3 लैम्डा, ओके, -3 -4 म्यू, -1 -3 लैम्डा, -3 -4 म्यू, ओके। ठीक है, यहां से आपको क्या निकालनी है बेटा? वैल्यू, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। सो इजीली निकल जाएगी। कैसे? अपने पास वैल्यू आ गई -2 ही आएगा ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको और ऐड कर दो। सो 8 लैम्डा -4 म्यू -3 लैम्डा प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करने पर दैट विल बी 12 -2, ऐड कर दोगे। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा यहां से, ऐड करने पर 5 लैम्डा इज इक्वल टू 10। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड म्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपने लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल ली। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ थर्ड इक्वेशन? व्हाट इज द यूज ऑफ थर्ड इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन कंफर्म्स यू वेदर द लाइन आर इंटरसेक्टिंग और, ठीक है, whether the line are intersecting or skew. Third equation confirms you with that. If third equation satisfies the values of lambda and mu, that means हमारे पास z कोफिशिएंट भी सेम आ गया, तो x, y, z तीनों कोफिशिएंट सेम आ गए, तो दोनों लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। That means that line intersects at x, y, z for this value of lambda. और अगर डिफरेंट आती है तो डिफरेंट आने पर एक बार पुट करो lambda इक्वल टू 2 एंड म्यू इक्वल टू 1, पुट करो यहां पे। सो lambda इक्वल टू 2 -10 प्लस 8 multiplied by 2 16 or mu is equal to 1 -1 plus 7, so this will be 6 equal to 6. That means this is true, and if this is true then L1 and L2 are intersecting each other. सीधी बात। That means L1 and L2 are intersecting. अब यहां पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ ले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या है? पुट लैम्डा इक्वल टू 2 और म्यू इक्वल टू 1। किस में पुट करना है? तो इन दोनों में से किसी में पुट कर सकते हो आप, आइदर इन दिस और इन बिलो। सो यहां पे पुट कर देते हैं लैम्डा इक्वल टू 2। क्या चीज थी ये? इसको मैं कॉपी कर लेता हूं एक बार के लिए बेटा।
ठीक है, कॉपी and you will paste it. Nothing to paste. Wait. से हो गया, copy, paste. So this was your equation. Put lambda equal to 2. As soon as you are putting lambda equal to 2, what you will get? You will get 5 and 2 means minus 7 and 1 means, 2 means 16, 6. You got 5 minus 7 or 6. And if you are putting mu equal to 1, mu equal to 1 किस में पुट करना है? ये जो नीचे लिखा हुआ है अपने पास, इसमें mu equal to 1 पुट करना है. mu equal to 1 पुट करके देखो तो ये भी किस में हो गया? 5, this is minus 7 and this is 6. So ये क्या गया? Point of intersection. अगर ये स्क्यू लाइंस होती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं क्या है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास? मुझे एक बार इसको कॉपी कर लेता हूं, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में चेंज कर रखा है कुछ. हाँ देखो, क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आराम से ताकि आप यूट्यूब पे पॉज करके सॉल्व कर सके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, एक जरा सा चेंज कर दिया यहाँ पे +10. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल जरा सा चेंज है. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 विल बी दिस. कि हमने क्या कर दिया, वही क्वेश्चन समझने के लिए कि यहां पे क्या पुट कर दिया बेटा, -10 की जगह +10. ठीक है, और अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो अब डायरेक्ट कंपैरिजन की आदत डालो. ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, अगर मैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट फ्रॉम फर्स्ट लाइन निकालता हूं, फ्रॉम फर्स्ट लाइन एक्स कोऑर्डिनेट, फर्स्ट लाइन से क्या लिखोगे? 1 + 2 लैम्डा. और सेकेंड लाइन से एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 4 + म्यू. ठीक है, यहां से इक्वेशन क्या आ गई आपके पास? 2 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 3. अगेन वाई कोऑर्डिनेट सेम थिंग. वाई कोऑर्डिनेट फर्स्ट लाइन से कितना हो जाएगा? -1 - 3 लैम्डा इज इक्वल टू -3 - 4 म्यू. सेम थिंग, -3 लैम्डा + 4 म्यू, 4 म्यू इज इक्वल टू -2. वही सॉल्व करोगे तो सेम वैल्यू आएंगी, लैम्डा इज इक्वल टू 2 और म्यू इज इक्वल टू 1. ठीक है, एंड थर्ड इक्वेशन z कोऑर्डिनेट. z कोऑर्डिनेट आपका क्या आ जाना चाहिए? z कोऑर्डिनेट विल बी 10 + 8 लैम्डा इज इक्वल टू -1 + 7 म्यू. And as soon as you are putting the value of lambda and mu, you are getting left hand side 18. So 10 + 8 multiplied by 2 is equal to -1 + 7 multiplied by 1. So this will be what? This will be 26 and this will be 6. So this is not possible. Not possible क्यों? क्योंकि पहली लाइन पे z कोऑर्डिनेट आ रहा है 26 और दूसरी लाइन पे z कोऑर्डिनेट आ रहा है 6. तो these are not intersecting line. अगर इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, पैरेलल लाइन नहीं है, फिर बचा क्या? दीज आर स्क्यू लाइंस. अब बचे 2 और कंडीशन कि लाइन पैरेलल है या नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 3, 13th पेज पे था आई गेस. हाँ ये रहा. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 0 0 0 3 - 1 2 2 0 1. वेक्टर R 0 0 0 फिर लैम्डा टाइम्स 3 - 1 2. ओके, लास्ट वाला लैम्डा टाइम्स 3 - 1 2. वेक्टर R इज इक्वल टू 2 0 1 प्लस म्यू टाइम्स -6 2 and 4 माइनस का
ठीक है, वापस पहला काम क्या होगा मेरा, पहला काम ये पता करना होगा वेदर दीज लाइंस आर पैरेलल और नॉट। फर्स्ट काम ये पैरेलल है या नहीं है। सो वेक्टर B1 लिखोगे पहली लाइन की डायरेक्शन, दैट इज 3 -1 2। B2 वेक्टर दैट इज -6 2 -4। सो यू विल चेक दैट 3 divides by -6, -1 divides by 2 and 2 divides by -4 all are equal to -1/2। ठीक है, that means what you can say that B1 vector is parallel to B2 vector। just because you have written B1 vector is parallel to B2 vector doesn't mean कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। कोइंसिडेंट भी हो सकती है, कोइंसिडेंट भी तो पैरेलल होती है, ये केस भी हो सकता है। फिर क्या करोगे, तो यहां पे अब केस 2 मतलब स्टेप 2 में आप क्या मान के चलोगे कि हाँ मान लिया कि L1 किसके पैरेलल है, L2 के पैरेलल है, और पैरेलल में भी आप डिसजॉइंट लाइंस मान के चलोगे कि एक लाइन ए रही एक ए रही। दिस इज योर L1, दिस इज योर L2। L1 कहां से पास कर रही है, 0,0,0 से, और L2 कहां से पास कर रही है, 2,0,1 से। लेट्स से ये A है और ये B है। ठीक है, इनकी डायरेक्शन क्या थी, किसी भी एक लाइन की डायरेक्शन लिख लो। B1 डायरेक्शन थी हमारे पास कितनी थी बेटा, 3 -1 2। सो 3 -1 and 2 ये थी। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AB वेक्टर। तो हम AB वेक्टर फाइंड करेंगे। AB वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास, AB वेक्टर विल बी 2 0 and 1। AB वेक्टर विल बी 2 0 and 1। नाउ अगर आप चेक करो तो AB वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू, AB वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू, या फिर सीधे सीधे लिखो नॉट इक्वल टू सम K टाइम्स वेक्टर B। यानी AB और B वेक्टर पैरेलल नहीं है। B1 AB वेक्टर पैरेलल नहीं है B वेक्टर के। क्या मतलब हो गया इसका मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि जो AB वेक्टर है दैट इज नॉट पैरेलल टू B वेक्टर। A एंड B हमारे पास डिफरेंट लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स वाई इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, इसी में अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखें, ठीक है, नेचर क्या होगा इस लाइन का, तो दीज आर पैरेलल, LL पैरेलल एंड डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। ठीक है, फोर्थ केस, फोर्थ नेचर देखना है हमें लाइंस का। तो कैसे देखोगे, लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, 0 0 1 3 2 2 एंड 3 2 1। 0 0 1 3 2 2। ओके, सो वेक्टर R 0 0 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 3 2 1। ओके, वेक्टर R 0, अच्छा 0 नहीं, 3 2 2 प्लस म्यू टाइम्स 6 4 2। सबसे पहला काम वही चेक करना कि हमारे पास वेक्टर B1 विच इज 3 2 1 एंड वेक्टर B2 विच इज 6 4 2। क्लियर कट दिख रहा है कि हमारे पास जो B2 है वो 2 टाइम्स B1 है। दैट मीन्स B1 इज पैरेलल टू B2। तो यहां से एक बात तो हो गई कि लाइन क्या है हमारे पास, पैरेलल है। अब पैरेलल में डिसजॉइंट है या कोइंसिडेंट है, ये कैसे पता चलेगा, तो वापस से सेकंड केस आप क्या मान के चलोगे कि हाँ भाई दोनों लाइन डिसजॉइंट लाइन से, ये मान के चलोगे। ए पॉइंट ए रहा, ए पॉइंट वाज व्हाट, 0 0 1, दिस वाज योर ए पॉइंट एंड हियर इज योर बी पॉइंट। बी पॉइंट वाज 3 2 2। एज सून एज यू आर फाइंडिंग ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर इज व्हाट, ए बी वेक्टर हो जाएगा आपके पास 3 2 1। एंड व्हाट वाज योर B1 वेक्टर, B1 वेक्टर वाज आल्सो 3 2 1। बेसिकली बोथ आर सेम वेक्टर, बोथ आर सेम वेक्टर मींस बोथ आर सेम डायरेक्शन। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू B1 वेक्टर। अब एक चीज बताओ, मैं यहां पे ए बी बना रहा हूं, जिस हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया है उस हिसाब से ए बी वेक्टर और B1 वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, अलग अलग होनी चाहिए थी, पैरेलल तो होनी नहीं चाहिए थे। दैट मीन्स वी हैव क्रिएटेड अ रॉन्ग डायग्राम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको वापस से सही डायग्राम क्रिएट करना पड़ेगा। ये रहा L1 और L2 इसी के ऊपर कोइंसिडेंट कर रही है। यहां पे कहीं होगा मेरे पास 0,0,1 नंबर और यहां पे कहीं होगा लेट्स से पॉइंट ए
और यहां पे कहीं होगा पॉइंट बी, दैट इज 3,2,2। अब यहां से जो आप ए बी वेक्टर निकालोगे और जो बी वेक्टर है दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, इजीली यू कैन राइट। ओके, सो इन द लास्ट वी हैव सीन द नेचर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। 4 क्वेश्चन लिए थे, मैं चारों क्वेश्चन एक बार वापस से आपको दिखा देता हूं ताकि आप खुद इसकी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, आप YouTube पे क्या करना, वीडियो पॉज करके चारों के चारों क्वेश्चन करना, वापस सॉल्व करना, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। आपको चारों में क्या बताना है, नेचर बताना है। नेचर विल बी व्हाट, दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। इफ दे आर इंटरसेक्टिंग देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, तो अब आप इसको कर लेना। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन स्क्यू लाइंस हैं, अगर इंटरसेक्टिंग नहीं हुई तो स्क्यू होंगी, गिवन दैट आपने पैरेलल की कंडीशन पहले ही चेक कर ली। देन आपको क्या चेक करना है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन में दो होती हैं, दोज आर डिसजॉइंट और कोइंसिडेंट। हाउ यू आर गोइंग टू चेक वेदर दे आर डिसजॉइंट और कोइंसिडेंट, यू विल अज्यूम दैट डिसजॉइंट लाइंस, देन यू विल फाइंड ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या है, ए पॉइंट है हमारा जहां से लाइन 1 पास कर रही है, बी पॉइंट है जहां से लाइन 2 पास कर रही है। ए बी वेक्टर फाइंड करोगे, इफ दैट ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू दी एनी ऑफ द लाइन, भाई क्योंकि दोनों लाइंस की डायरेक्शन बेसिकली क्या है, सेम है, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। इफ दैट ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू द वेक्टर ऑफ लाइन, देन दोज आर कोइंसिडेंट लाइंस, अदरवाइज दोज आर डिसजॉइंट लाइंस। ठीक है, सो आज के लिए हमारा इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।